Morning, sir. Morning. Who is QW5K? See, please change your name. Otherwise, you will be Good out. morning, sir. Good morning. Wait for 1 or 2 minutes also, so that people should join. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Today, CR of mechanical engineering is available in the classroom. Yes, sir. What is the name? Sir Amarjit Mandal. Okay. Amarjit, and from mechanical, this is Amarjit, right? And from Yes, civil, sir. he is available. Yes, sir. Okay, both of you, you have to take the screenshot of the attendance, okay? And please send it to me in WhatsApp. Next class onwards, there will be a Google form. It will be active for 5 minutes or 2-3 minutes. Okay. I will share the link in chat box. You have to go and mark your attendance. Okay. Yes, Okay, sir. sir. And I request to see her, please send the name of all the students if you have. Okay. Or either I will collect from the Google Classroom also. I don't have, sir. Okay, so today we'll start the first module. And also today I will upload some books also in the Google Classroom for your reference. And should I start? How many people have joined? 48 students have joined, sir. I think total is around 100 from both civil and mechanical. 102 or 103 is there. 48. Okay, let us start because time is limited, na? So start with the module 1. So in this we will go for the active and passive component. Okay. So
So if we go for the active component, actually in electronics, all the components that we see is categorized in two categories. Okay, one in active and second one is passive. Okay, so what is active? So active component are those components that require a source of energy to perform their intended functions. Okay, means they require some external energy to perform their task. इंटेंडेंट टास्क मतलब जो जिसके लिए वो बनाया गया, राइट, जो उसका काम है उसको करने के लिए उसको सम एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ सोर्स चाहिए, ठीक है ना। वो कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे? एक्टिव कंपोनेंट, ठीक है। लाइक डायोड, ट्रांजिस्टर, जेफेट, मॉसफेट, इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, it is optoelectronics devices. There are so many also. Okay, so this सर is, तो इसमें सर एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए होता है इसको यूज करने के लिए। हाँ, जैसे डायोड है बाबू, ठीक है, अभी डायोड जैसा काम करे उसके लिए कुछ उसको वोल्टेज देना पड़े, समझे ना। जैसे ट्रांजिस्टर, यस सर। ट्रांजिस्टर जैसा ये काम करे हमको एक्स्ट्रा सोर्स बाहर से देना, अदरवाइज इट विल नॉट फंक्शन एज ए ट्रांजिस्टर। ओके, ठीक है। यस सर। So these are the active components. You see there are transistor ICs also available in the picture. Okay, ऐसा आप देखते होगे some circuit में, अगर कभी खोले होगे या तुम्हारे सामने आया होगा, ठीक है। ठीक है। Now passive component. So for the passive component, as I said, for the active component, passive component क्या हो गया? इसको perform करने के लिए source कोई of एक्सटर्नल energy सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं जरूरत पड़ेगा। doesn't require the source of energy to perform its intended task. Okay, right. क्या क्या हो जाएगा ना, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, राइट। रजिस्टर को रेजिस्टेंस ऑफर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा हमको नहीं लगाने की जरूरत, राइट। कैपेसिटर को अपना काम करने के लिए, जो कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज को स्टोर करे, तो इसको हमको एक्स्ट्रा, इसको मतलब चलाने के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं, राइट। सेम फॉर द इंडक्टर आल्सो। Okay, we don't have to supply some external source to perform their intended functions. Okay, clear? यस सर। So these are the some few pictures of capacitors and one or two resistance is also there. We'll see that. Next, what is resistance? कौन बोलेगा बाबू, पढ़े होगे सब 12th में। So active और passive component समझ गए। Now we'll go for the passive component. 3 passive component, जो basic component है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में यूज होता है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर, राइट। So one by one we will see. This is only brush up of your knowledge, nothing else. I think all of you have gone through this content in the 12th or maybe in first or second semester, I don't know. Have you gone through or not? So what is resistance? Who will tell? The twist of the flow So current. resistance measure current of flow of current. The twist of the flow current.
सर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो में अपोज करे सर, Sir, it ऐसा is डिवाइस। used to resist the flow of current in any conductor, sir. Not only conductor, any substance. इलेक्ट्रिक सर्किट। Okay, you know na, insulator will not pass the current because of what? It's high resistance. Okay, the resistance of that body is so much high. So obviously the resistance is what? Property of substance to resist the flow of current through it. Okay, that is called as resistance, right? Okay, if you see the analogy, अगर कोई पाइप है, ठीक है ना, उसमें वाटर जा रहा है, लेकिन अगर उसके एरिया को, पाइप को आप प्रेस करते हो, दबा देते हो, तो क्या हो? आप रेजिस्टेंस डाल रहे हो फ्लो के अगेंस्ट में. Same analogy, if we connect with the resistance, now if we connect this resistance into the circuit, what it will do? It will resist the flow of current, right? If you see this, if you see this, है ना, एक पाइप है, इधर से अगर पानी फ्लो करवा रहे हो आप, लेकिन बीच में उसका एरिया कम कर दिया, है ना, तो क्या होगा? इस वाटर पे क्या फील होगा? वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, वो तो होगा। ये वाटर पे क्या लग रहा है? एक रेजिस्टेंस लग रहा है ना? अगर ये पूरा इतना ही साइज का रहता तो वाटर आराम से पार कर जाता, लेकिन क्योंकि बीच में इसका एरिया कम कर दिया गया है, नाउ वाटर विल एक्सपीरियंस सम रेजिस्टेंस. ओके, हाउ वी कैन क्रिएट a resistance in a pipe or in a flow of water in anywhere. ठीक है, same, just like same, if you talk about in the electrical system or electronic system, if there is a circuit like this and there is a source of a supply, अभी इसमें अगर हमको रेजिस्टेंस, ये करंट अगर फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो अगर हमको इस सर्किट में एक क्या बोलते हैं, अगर हम रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे तो देयर विल बी अ पोज ऑफ फ्लो ऑफ करंट. ओके, वो रेजिस्टेंस का यही प्रॉपर्टी है, इट विल रेजिस्ट. ओके, फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, आगे चले. आगे बढ़े. यस सर सर। जब करंट फ्लो Yes, कर sir. रहा सर तो रेजिस्टेंस क्यों लगाएंगे सर? to will have a pose, है ना, to suppose you need some in the circuit, suppose you have applied a 5 suppose volt. Okay, now you connect the bulb. तो बल्ब क्या है? एक रेजिस्टेंस, उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, एक एनर्जी है, सपोज 5 वोल्ट, तो कहीं तो कंज्यूम सर एक होगी वॉइस ना. आ रहा है सर आपके साइड से, हाँ, वॉइस आ रहा है एक सर। बीप टाइप का कुछ सर आ रहा है, बीप कर रहा है बार बार। excellent.
अभी ठीक है? हाँ सर। Right. So to have different level of voltages, we have to add some resistance. Okay. Anything that is Yes, sir. connected with the circuit is going to be considered as a Resist- load, and that is what? A type of resistance. Resistance. Okay. Suppose बल्ब लगा दिए, फैन लगा दिए, तो उसका तो कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, राइट? अब कितना कम कितना ज्यादा, Yes, sir. depend upon the value of the resistance. Okay, so this is nothing but a property of substance to resist the flow of current flowing through it. So now suppose एक simple coil ही है, एक तार ही है, तो उसका कुछ एक resistance है. Okay, although we don't want that, but because it's a property of material, not our in hand. Okay, Yes. now depending upon the property of material, we try to fit it in our work. Okay, तो जब ये सब चीजें मतलब इन्वेंट हो रहा होगा, जब लोग इसको पता कर रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब सपोज एक कहीं पे हम वोल्टेज दिए, आगे में जाके कम मिल रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तब उन्होंने ये सब मेजर किया, निकाला, देखा कि अच्छा मतलब एक सब्सटेंस है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है किसी भी सब्सटेंस का, वो मीठा लगता है कि तीता लगता है, कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो उसके क्रॉस क्या बिहेवियर होगा. लाइक दिस दे हैव फाउंड देयर सम एनी सब्सटेंस हम सब प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसका कलर, उसका टेस्ट, लाइक दैट. ओह ओके, so they have found that each substance have some resistance and it will resist when there is a flow of current. Am I clear? Yes, sir. Okay, so all material have a resistance, and that is depend upon the cross-sectional area of the material and the temperature also. Okay. Okay. So this is typical resistance. हम लोग ने देखा होगा. Okay. सब लोगों ने देखा होगा इसको कोई सर्किट्स में. So resistance, a resistor dissipate power in the form of heat. Okay, this is important. You have to have this information with you. Okay, this way. Okay. Now you'll see the some type of resistor. सर बोलो बाबू. सर सेकंड पॉइंट बता दीजिए. Second point. So कोई भी रेजिस्टर जो है ना, कोई भी चीज जब पावर डिसिपेट करेगा, खास करके रेजिस्टर, हम रेजिस्टर के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो ओके, इन फॉर्म ऑफ द हीट, जैसे कि पढ़ते ना आई स्क्वायर आर टी, है ना? 12th में नहीं पढ़े बाबू आई स्क्वायर आर टी? सर 12 नहीं किए हैं सर. यस सर पढ़े हैं। तो कोई तो भी इसमें डिप्लोमा हाँ बोलो बोलो. सर हम लोग डी टू डी है ना. ओके ओके, कोई बात नहीं. जैसे देखो रेजिस्टर है, अभी वो अपोज कर रहा है, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस का, सॉरी करंट का, ऑब्वियस. ठीक है, तो सपोज करंट सपोज लो कि एक फोर्स, और रेजिस्टेंस को सपोज लो कि एक मान लेते हैं कि तुम हो
और तुम ट्रक को पुश कर रहे हो, ओके, बहुत भारी ट्रक है, तुमसे क्या होगा, हिलेगा। ऑल्दो यू आर अप्लाइंग सम फोर्स ऑन इट, तो वो फोर्स तुम दे रहे हो तो तुम्हारी तो एनर्जी जा रही है ना, है ना, और वो कहाँ जा रही है, ट्रक के पास जा रही है, ट्रक के बॉडी को भी तो लग रही है। तो वो जो आपका एनर्जी खत्म हो रहा है वो किस फॉर्म में खत्म, ओके। सो लाइक दैट a resistor dissipate power in the form of heat। जब उसके क्रॉस करंट फ्लो कर रहा है, इट विल अपोज दैट फ्लो ऑफ करंट एंड, हाँ कोई एक हाथ उठाया, बोलो। सो वो जो पावर है जो डिसिपेट करेगा वो हीट के फॉर्म में करेगा, ओके। आई स्क्वायर आर टी, I square what? I is the current, that is square, into R means the value of the resistance, तो कितना ताकतवर है, और T is the temperature, okay? Yes, sir. ठीक है बाबू, नेक्स्ट चले। Yes, sir. No doubt till now? Sure. This is some type of resistor available in the कार्बन फिल्म टाइप एंड कार्बन रजिस्टर और फिल्म टाइप, और एक वायर बाउंडेड आर, ठीक है। 3 टाइप को जनरली जो हम सर्किटरी में यूज करते हैं, ओके। कैसे कंस्ट्रक्टेड है, कनेक्टिंग लीड तो आप जान ही रहे हो, है ना, ऐसा एक लीड रहता है रेजिस्टेंस का, आप देख ही रहे हो, देखते ही हो, सिंपल वाला रेजिस्टेंस, उसके अंदर क्या क्या है, ओके। रेजिस्टिव फिल्म्स रहते हैं, ओके। स्पाइरल ग्रूव रहेगा, उस पे ऐसा सा लपेटा रहेगा अंदर, और ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल ऊपर से जो हम प्लास्टिक जैसा देखते हैं वो रहेगा। कार्बन मिक्सचर टाइप भी यूज करते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल ये तो ऊपर वाला है, ठीक है, अंदर कार्बन का मिक्सचर्स रहता है जो कि ओके। और एक है ना इस टाइप का भी रहता है, वायर बाउंडेड रेजिस्टेंस, जो हम रेजिस्टिव मेटल वायर रहता है जिसको हम यूज करके रेजिस्टेंस बनाते हैं, ओके। सो I would suggest you go on the website or net. I will give the assignment regarding this. You have to write about carbon register, film registers, okay? कैसे इसका बनता है, इतना important नहीं है आपके लिए, but just to know about कि हाँ ऐसे ऐसा टाइप का होता है रेजिस्टेंस, ओके। डिपेंडिंग अपॉन कि कितना ये सह सकता है, जैसे होता है ना, जैसे मोटा तगड़ा, बहुत तगड़ा, है ना, कितना सह सकता है, इसके अकॉर्डिंग हम उसको सर्किट में यूज करते हैं कि कहाँ पे ज्यादा पावर वाला चाहिए, कहाँ पे आप देखते हो ना, कभी कभी कैपेसिटर ब्लास्ट कर जाता है, कभी कभी रेजिस्टेंस फट जाता है, सुने हो, कभी कभी खराब हो Yes, जाता sir. है, तो कैसे होता है, उसके कैपेसिटी से ज्यादा अगर आप वोल्टेज या करंट ड्रॉ कर लोगे उधर से, तो वो क्या हो जाएगा, गर्म होके फट जाएगा। Sir, sir, how it works, sir? हाउ इट्स वर्क, Yes. सिंपल, एक लकड़ी ले लो, उसके अक्रॉस अगर आप करंट सप्लाई दोगे तो क्या क्या फ्लो करेगा, नहीं। No, sir. क्यों नहीं फ्लो करेगा, जैसे दीवार है, दीवार के ऊपर पानी मारोगे तो पार कर जाएगा,
बोलो। दीवार के ऊपर अगर पानी मतलब वाटर फ्लो एक पाइप पकड़ के ऐसे ऐसे मारोगे तो क्रॉस कर जाएगा? नहीं सर। तो क्यों नहीं करेगा? जब तक बाढ़ नहीं आएगा सर। ये बाहर नहीं, सिंपल पूछ रहे, क्यों नहीं करेगा? रोक दे रहा है। रेजिस्टेंस है ना सामने, हाँ। है ना? वो पानी के लिए है। जैसे पानी अगर कहीं फ्लो कर रहा है, बीच में आप पैर लगा दोगे तब भी रुक जाएगा, वो अपना पाथ चेंज कर लेगा। ओके, बट उस वे में नहीं जाएगा। ओके, तो तो सर अगर ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे लकड़ी में तो लकड़ी जलेगा। नहीं, अभी हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है ना, कि कैसे करंट फ्लो होता है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। ओके, क्या यस। उसके पीछे क्या फिजिक्स है, क्यों नहीं फ्लो होता। ओके, टू यस। फ्लो द करंट आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वैलेंस बैंड में। ये 12th में पढ़े होगे। ओके, यस। 12th या फिर जो भी आपका क्लासेस होगा वहां पढ़े होगे, मतलब दिमाग से स्किप हो गया होगा। ओके, टू हैव ए फ्लो और स्मूथली जो करंट फ्लो होता है, आपको पता है मेटल में ही क्यों होता है, मतलब कंडक्टर में ही क्यों होता है? इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होता, जैसे बांस हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब में करंट फ्लो नहीं होता। देयर इज ए रीजन। क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं ना सर। हाँ, वैलेंस बैंड में जैसे बैंड होता है ना, के सेल, एम सेल, ऐसे करके, लास्ट वाला सेल को क्या बोलते हैं हम लोग? वैलेंस। हाँ, पढ़ेंगे उसको, ठीक है बाबू। अभी आगे बढ़ते हैं, ये जो बेसिक जो चीजें है उसको कवर करते हैं, ठीक है? तो आप जैसे कोई एक पूछा कि कैसे काम करता है रजिस्टर, यही पूछे थे ना? कौन था नाम, क्या था? रवि। रवि। ये भी देख, अभी आपको हम बता रहे थे कि जैसे वाटर है और आप दीवार पे आप मारते हो तो क्रॉस नहीं करेगा, ठीक? तो आप पूछोगे ये कैसे हो रहा है, बट फिजिकली आप देख रहे हो कि हाँ, मतलब एक सामने दीवार है तो वाटर के लिए वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, उसके सामने कोई है। तो बाय वर्च्यू ऑफ दैट वॉल your water is not going through, not crossing through. Okay, but if you see the same analogy in electrical circuit, तो आप पूछोगे एक रजिस्टर कैसे काम करता है, तो एक मटेरियल है बाबू। ओके, जैसे लोहा होता है, जैसे क्या बोलते हैं, कॉपर होता है, जैसे एल्युमिनियम होता है, उसी टाइप का एक मटेरियल से इसको मिक्सचर करके ऐसा बनाते हैं सो दैट कि वो करंट आसानी से पास ना हो पाए। हर चीज का, जैसे आपका या मेरा मेरा भी एक बॉडी का रेजिस्टेंस है, आपके भी बॉडी का एक रेजिस्टेंस है, ग्लास है, टेबल है, कुछ भी चीज ले लो, सबका एक रेजिस्टेंस है। ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की, कि अगर उस एक्चुअली में करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब उस लेवल पे आप सोचोगे कि इलेक्ट्रॉन्स स्मूथली पास ही नहीं हो रहा है कोई चीज से, और कोई चीज से बहुत अच्छे से पास हो, तो हम कैटेगराइज करेंगे कि हाँ भैया ये पास होने वाला मटेरियल है, ये नहीं पास होने वाला मटेरियल। ओके, तो पास होने वाले मटेरियल में कंडक्टर हम बोल दिए कि भैया ये कंडक्टर है, नहीं पास हो रहा उसको हम नाम दे दिए कि ये भैया इंसुलेटर। ओके, तो जैसे हर एक मटेरियल का प्रॉपर्टीज होता है, उसका कंडक्टिविटी का, उसका रेजिस्टिविटी का, उसका मतलब क्या बोलते हैं वो सॉल्वेंट है कि नहीं, इस तरह से हम टेस्ट करते थे ना हर मटेरियल को। आपके पास कितने मटेरियल अवेलेबल है पीरियोडिक टेबल में? रवि, गॉट द पॉइंट? यस सर। ओके, आगे बढ़े। यस सर।
आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव गॉट, कट जाएगा अभी, टाइम 10 ही मिनट बचता है। ओके, सो वेरियस टाइप ऑफ रजिस्टर, है ना। देखो ये रेजिस्टेंस का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, मतलब ऐसा ऐसा डिजाइन में दिखेगा आपको मार्केट। ओके, ये सिंपल वाला जो फिक्स रजिस्टर है, इसको चेंज नहीं कर सकते, जितना भी ओम का आएगा वो आएगा। सपोज 10 ओम का है, 100 ओम का है, लाइक दैट। ओके, इट विल नॉट चेंज। ये सिंबल है रेजिस्टेंस का, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखना ये कि ये रेजिस्टेंस का ऐसा सिंबल होता है फिक्स्ड रजिस्टर का। ओके, वेरिएबल रजिस्टर का ऐसा होता है, जो एक रजिस्टर है उसमें रेंज रहेगा, मतलब 0 से सपोज 10 के, तो ये जैसे जैसे आप स्लाइड करोगे उसके अनुसार रजिस्टर चेंज होता है ना। जैसे देखो ये पोटेंशियोमीटर है ना, कौन कर रहा है ऐसे, ओके, ऐसा पोटेंशियोमीटर हम बोलते हैं उसको। पॉट लगा रहता है, मैकेनिकल सिस्टम अंदर लगा हुआ है, उसको मूव करेंगे धीरे धीरे रोटेशन पे, ठीक है। ये जस्ट टू हैव द नॉलेज, ओके। ठीक है ना, ये सब जो हम सर्किट में यूज करते हैं सिंबल वैसा है। इसका यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस किस में मेजर होगा, ओम में सर। सर ओम। ओके, वेरी गुड। सो resistance will be measured in the ohm, okay। ऐसे हम लोग मेजर करते हैं, कोई भी रेजिस्टेंस की आपकी वैल्यू सही सही चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, सर्किट से ओपन करना पड़ेगा, तभी उसकी वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं मल्टीमीटर। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। व्हाट यू हैव टू डू, you have to pull up that resistance from the circuit, then you have to measure, okay। otherwise what will happen, इसका तो जो वैल्यू है ये जो वायर है उसका भी रेजिस्टेंस एक रहता है, और ये जो सर्किट लगा हुआ है उसके साथ उसमें भी उसका भी टोटल एक रेजिस्टेंस है, तो ये सब काउंट हो जाएगा ना इसमें। इसलिए इसका एग्जैक्ट वैल्यू डालने के लिए सर्किट से बाहर निकालना, तभी हम एग्जैक्ट वैल्यू मेजर कर सकते हैं, लाइक दैट, ओके, लाइक दिस। और डिपेंडिंग अपॉन कलर कोड वी कैन कैलकुलेट कि कितना रेजिस्टेंस है। we'll see also in the next class how to measure or how to find a resistance value through color coding, okay। आप रेजिस्टेंस को देखे होगे, अगर याद रहेगा तो, ओके। सर डिवाइस का नाम क्या है जिससे हम लोग मेजर कर रहे हैं ये रेजिस्टेंस? मल्टीमीटर बाबू। मल्टीमीटर, हाँ, डिजिटल मल्टीमीटर। हाँ, मतलब डिजिटल बोलो एनालॉग बोल लो, ओके। दुकान वुकान में देखोगे ऐसे निडिल वाला रहता है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता है लोग, कभी एक्सपीरियंस किए होगे, है ना, निडिल वाला रहता है, ऐसा मूव करता है। हाँ सर, देखे हैं, पीला कलर का रहता है। हाँ, तो अभी कॉलेज खुला रहता तो हम लोग इसको भी देखते लैब में, बट इफ यू वांट टू मेजर तो उसका भी कुछ किया जाएगा, ठीक है ना, ऑनलाइन भी कुछ करेंगे हम लोग, ओके। मल्टीमीटर बोलते हैं, वो डिजिटल भी हो सकता है एनालॉग भी होता है, ओके। नाउ कैपेसिटर, ओके।
So what is capacitor? Capacitor is a device which store energy. फिर से बोलो बाबू। A capacitor is a device which store electricity. तुम्हारा वॉइस ब्रेक हो जा रहा है, कोई और बोलेगा? Capacitor is used to store the energy. सर इलेक्ट्रिक चार्ज capacitor एक को डिवाइस स्टोर है करने जो के लिए स्टोर यूज किया जाता इलेक्ट्रिकल एनर्जी को करता है। सर इंस्टेंट करंट देता है सर। क्या करता है? सर अगर अचानक सर एक बार में जैसे पंखा उंखा में सर उसमें एक बार में देना होता रहता है ना सर करंट, तो उसी को स्टोर करके रखता है। हाँ, सर कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड सर। इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है सर। राइट, सब लोग सही है, बस वर्ड को अरेंज करके बोलना। ओके, तो लास्ट वन व्हाट ही सेड इज करेक्ट। ओके, कैसे लिखते हैं इसको, कैसे बोलेंगे हम? एवरीबडी इज करेक्ट। ओके, सम पार्शियली करेक्ट बट इट्स ओके। सो कैपेसिटर इज अ पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, राइट? हम इसको थोड़ा बड़ा करके लिखना चाहें तो ऑब्वियसली ये पैसिव कंपोनेंट है, ठीक है ना? दैट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ओके, किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के फॉर्म में। ओके, सो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? इसमें दो प्लेट लगे रहते हैं, बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है ना, जो डाइलेक्ट्रिक उसको बोलते हैं। और अदर वर्ड में हम बोलते हैं कि ये क्या करता है? सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है, ठीक है ना? इसका प्रॉपर्टी है, इन अदर वर्ड्स, विच doesn't allow the sudden change in voltage across it. Okay, so what we have discussed here, last minute is left. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, इसके यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, एक ही मिनट बचा हुआ है। ओके, तो क्या होता है बेसिकली? कैपेसिटर दो प्लेट्स होते हैं बाबू, है ना? इसके बीच में जो आप देख रहे हो इंसुलेटिंग एक मटेरियल होता है, ऐसे फॉर्म होता है। एक पॉजिटिव प्लेट होता है, एक नेगेटिव प्लेट होता है। ओके, बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, इसका इंटरनल डिजाइन। ओके, तो ये एक पैसिव कंपोनेंट है जो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ